I didn't really have to call anyone actually. ऐसा लग रहा था सब बस नजरें गड़ा के PDF पे खुद ही बैठे हुए थे. I think the minute the result came, calls started flooding in, friends, family, all of them. My mom was with me, so she was just trying to be calm for the both of us because I lost it because I had not expected, like especially in first attempt, you just wonder कि the journey starts with prelims clear हो जाए, mains लिखने का मौका मिल जाए, then it's like mains clear हो जाए, interview like देने का मौका मिल जाए, and then you are like just PDF में नाम आ जाए, but then you see that you're out of the cycle in your very first attempt. That's just an emotion I can't explain. So yeah, she was surprisingly calm, obviously very happy, and yeah, since then it's just been very, very amazing for all of us. It's like उनकी lives have changed more than my lives have changed since the result. एक कहावत है हिंदी में, लाइन में बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ कि पुत्री के पाँव भी पालने में ही दिख जाते हैं, और ये पुत्री का पाँव दादाजी ने पहले ही देख लिया था, है ना. सो मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, तो ये चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आपको मौका सबको देना चाहिए. अगर आपके घर में कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो प्लीज उसको पढ़ने का मौका दीजिए, और हो सकता है वो अगली आस्था सिंह हो. And welcome to our new podcast, Echoes of Excellence UPSC Success Stories. तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनकी मार्कशीट ही सुंदर नहीं है बल्कि वो खुद भी बहुत खूबसूरत हैं. ऑल इंडिया रैंक 61. तो लेट्स वेलकम आस्था सिंह, यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ 2024. हाय आस्था, हाउ आर यू? Hi, I'm doing great. तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा आपको? लाइक डर का माहौल था, कैसे इमोशंस थे, डर लग रहा था, खुशी हो रही थी, आंसू आ रहे थे, लाइक व्हाट? I think it was quite a mix. Like initially जब मैं अपना रिजल्ट देख रही थी, उस टाइम पे I was on a video call with a friend, I was with my mother, we were all panicking because the PDF could come at any moment, and when it did come and I could not find my name on the first page, and then I was like सर्च कर लेती हूँ क्या पता, and then there was one result found. 100 something वाला पेज खुला, but I still couldn't see my name, and then I finally saw on 61 my name written with my roll number, and just pure emotion of joy which translated into tears, and I cried for 5 solid minutes. I cried and I screamed, and then I finally cooled down, and then it was just happiness, attending phones, and yeah, surreal moment honestly of my life. Yeah, I can understand. It's a very big thing because, and I want to know आपकी फैमिली का क्या मतलब एक्सप्रेशन था जब आप ये रिजल्ट आया, आपने फैमिली में कॉल किया, तो तब उनका क्या था कि कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? I mean I didn't really have to call anyone actually. ऐसा लग रहा था सब बस नजरें गड़ा के PDF पे खुद ही बैठे हुए थे. I think the minute the result came, calls started flooding in, friends, family, all of them. My mom was with me, so she was just trying to be calm for the both of us because I lost it because I had not expected, like especially in first attempt, you just wonder कि the journey starts with prelims clear हो जाए, mains लिखने का मौका मिल जाए, then it's like mains clear हो जाए, interview like देने का मौका मिल जाए, and then you are like just PDF में नाम आ जाए, but then you see that you're out of the cycle in your very first attempt. That's just an emotion I can't explain. So yeah, she was surprisingly calm, obviously very happy, and yeah, since then it's just been very, very amazing for all of us. It's like उनकी lives have changed more than my lives have changed since the result. और सबसे बड़ी चीज़ है 21 साल की उम्र में आपने ये UPSC जो क्रैक किया है, उस टाइम पे तो हम अपने पेरेंट्स से ना ये नेगोशिएट कर रहे होते थे कि हमारी खर्ची बढ़ा दो यार, हमें पैसों की ज़रूरत है, और उस टाइम पे आपने लाइक UPSC क्रैक किया. इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और हमें सुनने में आया था कि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो कहते थे कि हाँ लड़की कलेक्टर बनेगी, राइट? तो उस पर आप कुछ बताइए. So because we're from Eastern UP, तो एक इनहेरेंट माता पिता में, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में हमेशा रहता है कि हमारे बच्चे कलेक्टर बने, DM बने, go into the government service because it's very revered upon. So that was one of the reasons कि वो चाहते थे मैं करूँ,
And I think from a very young age I've been a very bubbly personality, very assertive personality. तो उन्हें हमेशा लगता था कि her personality is just perfect for this, and that's why he hoped that I do end up becoming that. And that kind of put a कीड़ा in my brain कि यही करना है. But जैसे जैसे मैं बड़ी, my aims changed over time, and then धीरे धीरे I myself saw what this job entails, that it's really fitting my aptitude, and that's why my interest started developing. So I think he put the seed in my head, and that's why I'm very grateful. It's just a sad story that he's not here to celebrate this with me, but other than that, yeah, his आशीर्वाद has been there always. Obviously, yeah. उनका ये सपना भी कह सकते हो एक तरीके से जो आपने फुलफिल कर दिया है इस टाइम पे, और जहाँ भी वो है वो ऑब्वियसली खुश होंगे ये देख के कि वाओ नाइस, शी अचीव्ड. Yes, I'm hoping. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब बचपन में थे तो स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली तो आप बड़े हो रहे थे, तो आपके और भी तो सपने होंगे कि हाँ भाई अब मैं, मतलब ऑब्वियसली बात है जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारा माइंड कई जगहों पे घूमता है. अब बचपन में कुछ और, ये कुछ और, ग्रो करते करते हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है. तो उस टाइम पे आपका क्या था कि स्टार्टिंग से यही करना है या बीच में मन भी चेंज हुआ था आपका? नो, इट डेफिनेटली चेंज्ड. आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड कि मतलब बहुत ही बचपन में जब दादाजी ने बोला तो मुझे लगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है. बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, यू सी पीपल अराउंड यू, यू सी दैट देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज. एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर, एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट, at one point an air hostess. मतलब ये सारी चीज़ें oscillate करती गई मैं काफ़ी careers में. But eventually when I cleared my 12th examination, I had a lot of motivation from the family also, and inherently also I thought that I didn't want to personally go for a corporate job. I wanted to go into the public sector, and I felt like मेरा aptitude ज़्यादा उस तरफ inclined है. तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया बिफोर एंटरिंग कॉलेज दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड अकॉर्डिंगली आई टुक माय डिसीजंस देयर ऑन. सो आस्था, वी हैव अनदर गेस्ट विद अस, सुधीर सर. ही टीचेस करंट अफेयर्स, एंड अब वो आपसे कुछ आपके जर्नी से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं. तो हाय सर. हेलो. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आस्था, मतलब आपने जो किया है इट्स जस्ट अ मिरेकल. एंड एज ऑफ 21 इट्स जस्ट अ मिरेकल कि जब चीज़ें कोई बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है, चौराहे पे खड़े रहता है कि यहाँ जाए, ये कर लें, वो कर लें, लाइफ में क्या कुछ अता पता ही नहीं रहता है. उस एज में आप इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम IAS को क्लियर करती हैं, सिविल सर्विसेज को क्लियर करती हैं, और ऑल इंडिया रैंक 61. It's just a miracle. So congratulations. Thank you so much, sir. So my question is, आपका एकेडमिक अगर हम देखें तो आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, एंड आफ्टर दैट यू क्वालिफाइड फॉर हरियाणा PSC एग्जामिनेशंस. यू आर करंटली पोस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट. सो कैसे आपने सारी चीज़ें मैनेज की और तुरंत उसके बाद आपने IAS का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर दिया? I think a certain level of clarity had come to me before joining my college itself. Like I was a COVID batch to begin with, so I had some time to think about stuff also initially before starting college, and I had made up my mind कि मुझे यही करना है, based on which I decided that I want economics as my optional as my graduation degree, because I was planning कि आगे चल के मैं economics optional लूँगी अपने UPSC journey में, and so on and so forth. I made quite a few decisions early on in my life that were tailored around UPSC as an examination. तो फिर थ्रू आउट कॉलेज मैं अपने एम से बिल्कुल नहीं डगमगाई. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय अचीवमेंट्स दैट आई स्टेड रिजॉल्व्ड कि मुझे UPSC करना है. 3 साल मैंने कॉर्पोरेट मारामारी में कुछ भी नहीं किया. आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड देयर, एंड देन वंस आई डिड ग्रेजुएट आई न्यू दैट now it's high time, now I need to start preparing. So I jumped in. I decided कि मुझे ऐसा लगता था personally that I did not need a coaching for general studies, because I felt that there are subjects that I could do better on my own, faster on my own, because एक साल में पूरा syllabus करना is difficult. It's not impossible, but it's difficult if you go on the pace of say coaching institutes generally. They take a long time. And then same with optional. अगर मुझे सब कुछ टाइमली कवर करना था तो इसलिए मैंने वो एक डिसीजन लिया कि मैं ना करूँ कोचिंग, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत बचा और मैं सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाई. सो दिस वाज वन ऑफ द डिसीजंस दैट हेल्प्ड मी कि मैं
क्विकली चीज़ें करूँ, मैं इधर उधर ज़्यादा भटकी नहीं. I made decisions and I stick to them and I believed in them, and because of which my confidence paired with my strategic thinking and smart work in this preparation has helped me to manage this preparation. So yeah, I think that's it. Nothing crazy. People like बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में हैं. अभी देख लो कितना ये प्री प्लान था, अभी आपको पता नहीं चल रहा है. इट वाज प्री प्लान. 12th क्लास से ही पता था कि ग्रेजुएशन करना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हमारा जाएगा यूपीएससी में. दैट वाज ना, है ना. तो ये चीज़ें बहुत पहले से चीज आप ऐसे प्लान करो, ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन में आएंगे, फिर नहीं बनती चीज़ें. अगर आपको करना है तो आपको बहुत पहले से डिसाइड करना होता है कि मुझे ये करना है. वही मैम ने किया. वो जो आपको आज ऑल इंडिया रैंक 61 दिखाई दे रहा है, ये बहुत पहले से सोचा हुआ था. और दिल्ली कॉलेज ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना ही अपने आप में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई हुई. देन आपको थोड़ा हरियाणा पीएससी के बारे में बताइए, उसमें सिलेक्शन कैसे हुआ और कब हुआ, एंड आपने वो चीज़ें मैनेज कैसे करी. हरियाणा पीसीएस में ऑलरेडी सर्विंग एंड देन यू क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. मैनेज कैसे हुआ? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारे लोग मुझसे, बहुत बच्चे बोलते रहते हैं, सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे क्लास करनी है, मेरा 12th फंस रहा है, मेरा ग्रेजुएशन असाइनमेंट. आपने कैसे मैनेज किया? तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेरा कोई बिगिनिंग से प्लान नहीं था स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आई थॉट आई विल गिव वन होल अटेम्प्ट अच्छे से होल हार्टेडली टू यूपीएससी. बट समहाउ थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव सम सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस एग्जाम, लाइक क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए निकला था फॉर्म, एंड देन last day I somehow decided that I might as well just go for it, see how it works out. I was not hoping and expecting anything. I gave the prelims. I didn't prepare anything. To be very honest, I studied maybe for 2 days related to Haryana की geography, culture and जो बहुत ही random facts हैं वो मैंने 2 दिन पढ़े. And then I went and gave the prelims and I was so severely underconfident that नहीं होगा. I was almost sure that नहीं होगा. But somehow that happened, that worked out. And then mains came. I was still preparing wholeheartedly for UPSC prelims at the time, March end. I didn't give much time to mains also. I just quickly revised my option and went for the exam. And that worked out as well. And then the interview for Haryana Civil Services was on 14th June, which was 2 days before my UPSC prelims. So again, I did not prepare for my interview that much. I did very brief, understanding of the government, what was going on, and I just went for it. And somehow I would say it's a blessing in disguise that I did not put as much effort as proportionate to the outcome that I got. Yes. Meri life has been so much better since I've been there because I've got a certain level of independence at the age of 20. And when I had joined, एक तरह से सेफ्टी नेट भी आ जाता है, क्योंकि मैं 14 तारीख को ही, बिफोर गिविंग माई प्रीलिम्स, आई वाज ऑलरेडी इन सर्विस. देयर वाज अ लॉट, ऑल माई एग्स वर नॉट इन वन बास्केट एट दैट टाइम. तो वो प्रेशर भी आपका ईज हो जाता है ऑन दिस एग्जामिनेशन कि ऐसा नहीं है कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो देन देयर इज नथिंग टू गेट बैक टू, नथिंग टू फॉल बैक टू. सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड, आई थिंक Haryana Civil Services journey was quite smooth. Came to the balancing of things once I got in there. मेंस के टाइम पर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी हरियाणा सिविल सर्विसेज की. सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई वाज अटेंडिंग क्लासेस एंड देन इन द इवनिंग फॉर व्हाटएवर 6-7 hours I could find up until midnight or 1 a.m. I would study for mains. For 1 month, that's how it went. So that was a very difficult, risky period of my preparation where I thought ki now things cannot work out. Like you cannot just study for 6-7 hours in mains and expect you'll clear it in your first attempt, right? So that phase I had to struggle a little bit, but after that my seniors have been super supportive. My office has been very encouraging and motivating. They've given me ample time to even focus on my preparation when it came to interviews. So I think their support has also been monumental, and it's not just all me but everyone around me that's helped me be here. वेरी नाइस. एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं होता है. तो आप लोग देख सकते हो कैसी चीज़ें, मतलब आप आस पास के इन्वायरमेंट, बहुत सारे कहते हैं कि मेरे घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, मेरी चीज़ें ऑपोजिट चलती हैं, कोई है प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऑल दैट.
बट आप देखो कि एक कहावत है हिंदी में, लाइन में बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ कि पुत्री के पाँव भी पालने में ही दिख जाते हैं, और ये पुत्री का पाँव दादाजी ने पहले ही देख लिया था, है ना। सो मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, तो ये चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आपको मौका सबको देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो प्लीज़ उसको पढ़ने का मौका दीजिए, और हो सकता है वो अगली आस्था सिंह हो। सो ये है, आपने शायद ये एक चीज़ सेट करी है, ये बहुत लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगी, और बहुत सारे लोग इसको देख के इंस्पायर होंगे कि हाँ मैं भी आस्था सिंह बन सकती हूँ। थैंक यू सो सो प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं जो मैं चाहता हूँ कि वन बाई वन क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लाइक एक बहुत बड़ा हर्डल जो अक्सर लोगों को पता चलता है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, इट्स लाइक कि जंग जीतना है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो तुम आईएएस बन गए। लाइक आपका प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने क्वालिफाई किया? कुछ ऐसा रामबाण तरीका, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए ना, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। आई थिंक आई अग्री कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनसर्टन फेज है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एवरी ईयर इट्स गेटिंग मोर अनप्रिडिक्टेबल। तो no matter how smart you are, something can go wrong and then you're stuck at the first stage. तो मुझे खुद काफ़ी डर था प्रीलिम स्टेज का, बिकॉज मैंने कोई competitive एग्जाम HCS के अलावा उससे पहले दिया नहीं था। तो आई वॉज सुपर स्कैर्ड एंड फ्रीक्ड आउट अबाउट इट कि कैसे होगा। तो मैंने जनवरी से लेकर जून तक पूरे टाइम सोलली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। कैन यू बी स्पेसिफिक अबाउट प्रीलिम्स की? आपने वो इस दौरान किस चीज़ की एग्जैक्टली प्रिपरेशन करी थी, क्या पढ़ा था आपने? मेरे जो कोर सोर्सेज थे मैंने उन्हें ही पढ़ा। सो कोर सोर्सेज कैन बी 1 or 2 सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की NCERT हो गई, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी के लिए आई वॉज फॉलोइंग विवेक सिंह बुक। सो स्टफ लाइक दैट। जो भी मेरी मेन बुक्स हैं मैं उनको पहले रीडिंग देती थी। आई रिवाइज्ड quite a few times. Okay. So I did 3 full revisions of the entire syllabus with current affairs and PYQs. जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ती थी मैं उसका कोर सोर्स पढ़ूंगी, फिर मैं PYQs देखूंगी, एंड that's when I would say that ठीक है मैंने एक रिविजन कर लिया है। तो ऐसे मैंने PYQs को भी 2-3 बार रिवाइज किया पूरी तरह से। सो दैट्स हाउ माई स्टैटिक पढ़ाई वेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड व्हेन इट केम टू करंट अफेयर्स, सो करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पार्ट्स, एंड नो मैटर हाउ मच यू स्टडी there's a possibility that you might not be able to hit even one single question. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी काफ़ी पढ़ा बट मुझे नहीं लगता मैंने इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सही मार्क किए होंगे या अटेम्प्ट कर पाई होंगी, बिकॉज अगेन there's so much happening throughout that you can't possibly read everything. So my basic funda was that you follow one source for current affairs, you read it, you revise it, and then you just leave it. Stop thinking about it. Yes. सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं आप. Yes. You have to understand that. Exactly. So you just have these limited sources. You keep revising them over and over again. So in case कुछ उसमें से आता है, you never miss it. Okay. Because the game is not those 3-4 questions that are bouncers. The game is the rest of the 80-90 questions that are doable, right? तो आपको उस मेजर गेम पे फोकस करना है। तो माई मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वॉज फोकस ऑन सॉलिडिफाइंग योर स्टैटिक, डू एज मच एज यू कैन, एंड PYQs को अच्छे से घोट के पी लो। Exactly. Because you understand the terminologies, the word, the language that UPSC uses, which also helps you in intelligently guessing a lot of questions. Exactly. क्योंकि अच्छे से आपको शायद 30-40 क्वेश्चन आते होंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको थोड़े से इंटेलिजेंटली गेस करने पड़ेंगे, आपको रिलेट करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा. These are things that you can only do when you have like a good grasp on PYQs. Exactly. So that was my strategy. You have to do practice as much as you can. The question is जो एक बेसिक प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज की, प्रैक्टिस की. सो बिफोर प्रीलिम्स आपने टेस्ट सीरीज की हेल्प ली या फिर प्रैक्टिस कैसे किया? PYQs तो आपने बताया कि PYQs ने बहुत हेल्प किया. अदर देन दैट जो सोर्सेज आपने यूज किए? सो टेस्ट तो बहुत ही फ्रीली अवेलेबल होता है मार्केट में. बिलीव कि टेस्ट लगाना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स? राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक प्रीलिम्स का गेम ही वही है कि अंडरस्टैंडिंग कि कितने क्वेश्चंस मैं करूँगा तो मेरा बेस्ट स्कोर आ रहा है,
how do I handle that pressure situation when you don't know a lot of questions. But क्योंकि mostly जब आप initially test लगाना शुरू करते हो, most of the questions that you do wrong are questions that you already know. तो एक pressure situation आपसे handle नहीं होती, time based आप questions नहीं कर पाते हो. ये सारी जो भी problems है that can only be overcome through tests, right? Test से बहुत ज़्यादा knowledge gain नहीं करते हो आप मेरे हिसाब से. It's more about gaining that confidence that you can go in that paper and you can attempt it. Because prelims में मैंने जितना देखा है कि लोग freak out कर जाते हैं, they lose their cool, they're not able to do the questions that are easy also because the pressure gets to them, right? तो वो सारी चीज़ों को handle करने के लिए मेरे हिसाब से mocks देने चाहिए. एक आपको speed बनती है कि आपको paper किस तरह से attempt करना है, कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है, कौन सा मुझे स्टार्टिंग से करना है, लास्ट से करना है, पॉलिटी से करना है, ज्योग्राफी से करना है. ऑल दीज थिंग्स दैट यू डेवलप दिस पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द पेपर दैट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस एंड मॉक्स आर हेल्पफुल. आई टुक अ लॉट ऑफ लाइक रैंडम मॉक्स ऑल्सो. मैं ORN जाके आई बॉट टेस्ट एंड आई यूज्ड टू डू देम. जैसे ही मैं कोई सब्जेक्ट करती थी, आई वुड डू अ फ्यू सेक्शनल टेस्ट ऑफ इट. Then after the first 2 months, maybe from March or something, I started doing every week, full length tests. So that's how I went about it. मैंने करे होंगे 30-40 के around mocks तो दिए ही होंगे मैंने मिल. Means test is very important for your prelims. Prelims at least. Okay, got it. Can you please? मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ क्लासेस में कि वहाँ गलती करने से पहले ना यहाँ गलती कर लो. और आप जब एक बारी गलती कर ले तो दिमाग का पैटर्न ही यही है कि आपने एक बारी गलती कर ली तो आप वहां पे सेम गलती नहीं करोगे. अगर आप वहां पे सेम गलती कर रहे हो फिर तो बेवकूफ हुआ, है ना? तो आपको जितनी गलतियां करनी है हम जब पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस में होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, उस टाइम कर सकते हैं. एग्जाम में जाके ट्रायल एंड एरर नहीं करना है. और ये ट्रायल एंड एरर सीसैट में बहुत बच्चे करते हैं. सीसैट में पूरे साल प्रिपरेशन नहीं करते हैं सीसैट की, और फाइनली ये डिसीजन जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं सीसैट की, वही उनके लिए नाइटमेयर बन जाता है एग्जाम में. सीसैट की प्रिपरेशन आपने कैसे करी, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है स्टूडेंट्स के लिए. So CSAT was again something that gave me a little bit of underconfidence क्योंकि मैं हूँ नहीं मैथ्स बैकग्राउंड से, and I'm like that's why मैंने क्वेश्चन पूछा. I'm like okay with it, like decent, but it's not like something I'm confident in कि मैं बिना पढ़े CSAT का पेपर देने चली जाऊँ. So I had to do some bit of studying. So what I started with was जो 2023 का CSAT का पेपर था, जो कि बहुत ही मुश्किल था. मैंने उसको बिना किसी प्रिपरेशन के सॉल्व करने की कोशिश करी and I passed. So I was like, ठीक है, it's not that bad. Maybe, if with a little bit of practice, I can get better at it. तो मेरी strategy थी कि मैंने एक playlist sort of YouTube पे मैंने देखी CSAT में, जिसमें basic syllabus covered था. मैंने वो पूरी PDF नहीं, पूरी playlist पढ़ी. I completed all the relevant areas, permutation and combination हो गया, number system हो गया, सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक बार पढ़ी and practice करी. whatever questions and worksheets were solved there. उस वजह से मेरा एक बार सिलेबस पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया बेसिकली, जो CSAT का ढांचा है. आफ्टर दैट मोस्टली माई प्रैक्टिस रिवॉल्व्ड अराउंड PYQs. तो मैं क्या करती थी कि पूरे फुल लेंथ पेपर्स टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करती थी CSAT के. इफ आई एम पासिंग दैट्स गुड. देन आई ऑल्सो यूज्ड टू डू अ फ्यू मॉक्स CSAT के जो भी मार्केट में आ रहे हैं. एंड देन दैट वॉज इट, दैट वॉज माई प्रेपरेशन. लास्ट मतलब एग्जाम से पहले मैंने क्या किया था, 3-4 शीट्स की एक चीट शीट थी बना ली थी, जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज, जो भी रेलिवेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू CSAT हैं, हर एरिया से, हर टॉपिक से, आई हैड रिटन देम इन 1 पेज. एंड आफ्टर माई GS पेपर वॉज ओवर, द 2 hour गैप दैट यू गेट, मैं सिर्फ वो फॉर्मूलाज रिवाइज करके आई वेंट फॉर द एग्जाम एंड आई स्कोर्ड डिसेंट 97, which is not bad. आप तो मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो चीजें सॉर्ट कर देते हो, तो ऐसे करके मैम कहती होंगी आस्था है तो रास्ता है. आस्था है तो रास्ता है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेंगे ना ऐसे. वेरी नाइस. आई जस्ट वॉन्ट वन कन्फर्मेशन फ्रॉम योर साइड कि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ क्लासेस में कि UPSC इज लाइक ओशन, यू हैव टू सेलेक्ट मोतीज पर्ल्स फ्रॉम द ओशन. नाउ इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है और आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है. टॉपिक सेलेक्ट मतलब कि मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ना है. UPSC इज ऑल अबाउट कि मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है. अदर देन आप पूरा पढ़ते चले जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं. और अगर
आपको उनमें से चुनना हो, सपोज कि अगर मैं कहूँ कि 2024 में या 25 में जिसको एग्जाम देना है उसको लचित बोरफुकन के बारे में पढ़ के जाना चाहिए, या मैं कहूँ कि आपको इस बार होयसल डायनेस्टी के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लचित बोरफुकन और होयसल डायनेस्टी इस बार न्यूज़पेपर्स में थी। आप क्या इस बात से अग्री करती हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, लाइक होयसल डायनेस्टी, लचित बोरफुकन, अहोम डायनेस्टी, क्योंकि अभी बरियल साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई, तो क्या आप अग्री करती हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए? क्या ये वही मोती हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? क्या आप इस बात से अग्री करती हैं? डेफिनेटली आई थिंक जो टॉपिक्स बार बार न्यूज़पेपर्स में रिपीट होते हैं, करंट अफेयर्स में रिपीट होते हैं, दे कैच द आई ऑफ यूपीएससी एंड इट मेक्स सेंस, यू नो, बिकॉज इफ यू आर एन अवेयर एस्पिरेंट यू विल हैव इंफॉर्मेशन कि ये कुछ चल रहा है, एंड इट ओनली मेक्स सेंस दैट यू रीड दोज टॉपिक्स इन डिटेल, राइट? तभी आपकी मेंटल अवेयरनेस भी टेस्ट होगी, राइट? तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है, अलॉन्ग विथ डेफिनेटली स्टैटिक पोर्शन जो आपका यूजुअली रहता है उसको आप करंट अफेयर्स के कॉस्ट पे सैक्रिफाइस ना करें. दैट इज माई ओनली डिस्क्लेमर दैट आई वुड से. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आई हैव सीन, I mean in the past people I know have been preparing. तो क्या होता है, आप कई बार you get overwhelmed by the amount of current affairs and by the sheer importance, because something is so unpredictable, because something is so vast, you feel like मैं कितना पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ. That is one problem with current affairs that people are not able to handle. हर दिन मार्केट में जो नया मैटर आता है, everyone tries to सब कुछ grasp करने का. So you have to be selective about it, especially like say the points that you said. There will be certain topics that will be repeatedly mentioned in current affairs. Those are the kind of topics that you focus on. Rest your current affairs should be like for your understanding कि ठीक है ये चल रहा है, you know about it. It's not like you sacrifice your static preparation on that. So just keep that in mind. That's my only disclaimer. Okay. How much weight you will provide current affairs? You will give current affairs? I'll be personally speaking, मेरे हिसाब से तो 80-20. 80 is for static, 20 is for current, because static gets you marks. Static makes sure you pass. Okay. Current affairs gives you an edge. It's basically if you are well read with current affairs, तो होगा कि आप 100-110 के पार जाएंगे, बट इफ यू डू स्टैटिक यू विल पास फॉर श्योर. स्टैटिक को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर वो पास होना मुश्किल है आपके लिए. कैन यू प्लीज शेयर योर टाइम टेबल, बिकॉज बच्चे हमेशा क्लासेस में पूछते रहते हैं भाई वो तो टॉपर हैं और उनका क्या स्लॉट रहा होगा, कैसे पढ़ती होंगी, टाइम टेबल क्या होगा, कैसे मैनेज करती होंगी. तो कैन यू प्लीज टेल योर टाइम टेबल फॉर UPSC एग्जामिनेशन? The thing was that I was preparing from home. I was not doing coaching for GS. A lot of my preparation was self-preparation, right? So for me, timetables have been very flexible. Depends on various stages of my preparation. So when I initially started preparing, most of my time used to go in strategizing and understanding कौन सा source पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है. तो से मैं पॉलिटी शुरू कर रही हूँ, तो उससे पहले मैं 2-3 दिन सिर्फ I'll scroll through YouTube, I'll scroll through the internet, Telegram, and talk to my friends and see कि कहाँ से पढ़ना चाहिए. वो मैं स्काउट करूँगी रिसोर्सेज के लिए. तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही होती, बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, बट मोस्टली आई एम ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज एंड मेक एन आउटलाइन कि दिस इज माई आउटलाइन फॉर माई सिलेबस, इतना मुझे पढ़ना है. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा कम पढ़ती थी, बट वंस आई डिड स्टार्ट माई जर्नी, पढ़ाई वाली जर्नी, like full fledged from July of 2023, I used to study for like say 8 hours a day. Up until December. Yes. 8-9 hours मैं average पढ़ने की कोशिश करती थी, because I'm a full-time aspirant. That's the least I can do. And then when January came and I started, full-fledgedly preparing for prelims. From January to June, I studied for 12 hours every day, preparing for prelims. That's how much effort I put, and I think it's a decent amount of effort that you should put at that point. When it came to mains के time पर I was not able to put that much effort, because like I said, I was in the training of Haryana Civil Services at the time. I would only get like say 6-7 hours after my classes to study. So for the entire month of August, I was studying 6-7 hours for mains, when you ideally should be studying say 12-13-14 hours, because mains is crucial. Yes. Right? एंड हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे वेरी करता गया. एंड आफ्टर दैट, वंस आई डिड गेट माई लीव अप्रूव्ड सितंबर में, आई वुड स्टडी फ्रॉम से
for 16 hours. For 20 days, I was like, 16 hours. Stop worrying about anything and everything. I would wake up in the same room. I would get to study. I would eat in that room. I would sleep in that room. I would do all my hobbies in that room. So yeah, that's how it went. So my timetable has been like flexible. सुबह उठो at a decent time, 8 बजे उठो, 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, have some me time, when you're having lunch, I would watch Netflix, I would watch Prime, I would keep myself energized, I would talk to my friends and family, and just try to do a certain number of hours and certain amount of syllabus consistently. अगर वो target मेरा complete होता था, then I thought that I was on track. So don't pressurize yourself with like 16, 17 hours of prep. That's just unreal. That can't happen for an entire year. But that's For a few months. for a few months when it requires. For example, closer to mains, I would say, is when you can just put all your energy in and you can stretch to 14-15 hours. Right? So other than that, consistently आपको 7-8 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. Exactly. मतलब if you have 7 or 8 hours in a day, then you can qualify this particular exam. And last month में आपको consistency is very important. One thing is that I never stopped studying for even a day. मतलब अगर मैं preparation करी है तो even if it's the worst day, even if I have some family engagements, if I have something or the other, I would study at least for a little bit. Like मतलब कुछ नहीं तो I'll just randomly read newspaper या फिर current affairs on my phone, but I will stay connected. I will not just completely disconnect for a week and then I'm struggling to come back to my routine. तो ये कभी नहीं हुआ, जिस वजह से मैं अपनी पूरी preparation में consistent रही, and that has definitely helped me get here. Exactly, मैम. माइकल फेल्प की एक बहुत अच्छी सी लाइन है, जो बात कह रही है वो वही सेम बात कहते हैं कि अगर मैं एक दिन तैरने ना जाऊं तो मैं 2 दिन पीछे हो जाता हूं. अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करी आप 2 दिन पीछे हो जाओगे. अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो आप 2 दिन पीछे हो गए, ये मान के चलिए. नहीं, अगला नेक्स्ट डे आप पढ़ना है तो आपको 3 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ होगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है. अगर आपने ठाना है कि आपको IAS बनना है तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, है ना. और लास्ट मंथ में तो 16-18 आवर्स मेहनत करनी पड़ेगी आपको एटलीस्ट. तो आस्था, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपको 200 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में. ऐसा भी क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है एक्चुअली. और कोई ऐसा फनी इंसिडेंट, क्योंकि बच्चे तो ये सब सोच के भी डर जाते हैं कि इंटरव्यू है, डरे रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होके वो उस इंटरव्यू के टेबल पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई अब टेबल पे हम पहुंचे और अब सामने से वो क्वेश्चन पूछेंगे और डरे पड़े हैं. तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा कि आपको 200 मार्क्स मिल गए? कुछ तो होगा ऐसा. I wouldn't say anything funny happened per se. I definitely had a good interview. Starting में मुझसे जो कुछ questions पूछे गए which were out of my forte, तो उस वजह से मुझे थ्रो ऑफ तो ज़रूर किया गया मेरे गेम के. Like something that was not related to my background, something that was not related to my DAF was asked right away by the chairman. So that threw me off a little. But the thing was that I never showed that on my face. It never affected my confidence. So I think ये एक चीज़ होगी कि definitely rest of my interview went amazingly despite the initial थोड़ा सा kerfuffle. That would be one. And secondly, funny तो as such कुछ नहीं हुआ था, but हाँ, they looked at my 12th standard marks and then I had 99% in my 12th. So they asked, why did you go for SRCC? Why not for Stephens? Exactly. And I just said, sir, I could not get into Stephens. And they were just amazed. What? Like at 99% you're not getting into Stephens? I was like, hard luck. But yeah, that was the only time where I felt like a sympathizing moment on their end. But other than that, it was a very professional interview. It was very related to economics, related to my job a little bit, and overall issues in general. So ऐसा कुछ ज़्यादा crazy तो नहीं हुआ जैसा मैंने सुना है बाकी interviews में. But yeah, it was a good interview. So हाँ, that's very great, क्योंकि आपका जो स्कोरिंग था उसमें 200 था, जो कि बहुत रेयर होता है. एनीवे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब मेरा क्या, इवन हमारे कैंडिडेट जो अब यूपीएससी के लिए जा रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में भी एक क्वेश्चन लिखा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो शायद बोरिंग होता है. तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो बोरिंग हो और आपने उसे कैसे टैकल किया, तो वो थोड़ा सा बताइए. I wouldn't say ऐसे बोरिंग
subject per se, but हाँ, definitely I struggled with say ancient history a little bit. Ancient, medieval भी नहीं, ancient history पे ही थोड़ा सा मुझे लगा, and even modern history a little bit. जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मुझे एक अंदर से बायस होती है ना कि यार modern history तो मतलब क्या, it's a little boring, इसमें राजा शहंशाह कुछ है भी नहीं. So I mean, how will I like develop interest in it, because I was not a humanities background student anyways. तो मेरे लिए था थोड़ा inertia कि अब कैसे करूँगी इतनी मोटी स्पेक्ट्रम की बुक. तो I just found innovative ways to study. तो मेरा ये है कि अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ ना, like obsess कर लूँगी किसी चीज़ पे, तो I will study it so much, I will read about it so much until the point that like I'm a fan of it. तो मैंने ऐसे कुछ YouTube वीडियोस, कुछ ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढी जहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ पढ़ाना पता चला, जहाँ से वो टीचर्स ऐसे होते हैं कि दे ट्राई टू इंस्टिल योर इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स. तो इसलिए मैंने यूट्यूब का बहुत ऐसे टाइम्स पर सहारा लिया जब मुझे ऐसा लगता था बुक से पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज रीडिंग स्पेक्ट्रम राइट आउट ऑफ नोवेयर व्हेन यू हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टू बिगिन विद, कोई बैकग्राउंड नहीं है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो फॉर दैट आई वाज लाइक एनी टाइम दिस हैपेंड आई वुड जस्ट गो टू यूट्यूब. सेम फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. Wars and everything seems very daunting to begin with, इतनी सारी wars को याद रखना, but then I used to just watch videos and then I would watch Oversimplified as a channel which explains a lot of wars. तो मैं तो ऐसे ऐसे करके अपना बहुत interest develop किया, and then after that it just becomes interesting because I'm kind of a nerd, so I like studying anyways. Actually we do same thing actually. हमने आपको पहले भी ये चीज़ दिखाई कि हम चीज़ों को, मतलब मेरा आइडिया बहुत क्लियर था इन चीज़ों को लेकर. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते, एक लाइन में एक बच्चा बार बार क्लास में आ रहा था कि नाश हो इतिहास का सनी के समुद्र में बह गए और मर गए ये लोग, रोने के लिए हम रह गए. याद हमें करना पड़ रहा है भाई, इतना सारा किंग थे, इतने सारा काम किया. मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आती थी और बच्चे बार बार इसमें फंस जाते थे कि यार याद कैसे करें. होयसल डायनेस्टी न्यूज़पेपर्स में है, मैं कैसे याद करूं कि विष्णुवर्धन वाज वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ होयसल डायनेस्टी. मैंने उसका बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि यार हिस्ट्री याद नहीं होती है बच्चों को, और खास एंशिएंट हिस्ट्री तो याद नहीं होती. कैसे करें. तो हमने इसका बड़ा बढ़िया तरीका निकाला कि हम जैसे मान लीजिए कि विष्णुवर्धन हमें याद करने हैं, तो विष्णुवर्धन ने एक इंपॉर्टेंट सिटी स्टेब्लिश की थी, दैट वाज द्वार समुद्र. उसको अभी करंटली हेलवेडू के नाम से जानते हैं. द्वार समुद्र, विष्णुवर्धन को मैंने भगवान विष्णु से लिंक किया, तो विष्णु भगवान भी समुद्र में रहते हैं तो द्वार समुद्र हो गया, है ना. उनके टाइम रामानुजाचार्य थे तो राम विष्णु से आ गए. चन्ना केशव टेम्पल उन्होंने बताया तो केशव विष्णु लिंक हो गए. तो लाइक ऐसे हमने कुछ ट्रिक्स निकाले. हम भी लगातार इन चीज़ों पे लगातार जॉब ग्रेड इस बात पे फोकस करता है कि कैसे करके हम ट्रिक्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू चीज़ें प्रेजेंट करें, सो दैट अभी जो एज है चैट जीपीटी से हम कैसे स्मार्ट होएंगे. अभी देखो चैट जीपीटी आ गया है, सारे बच्चे प्रिपरेशन करते तो फिर चैट जीपीटी हायर कर ले यूपीएससी, क्यों ह्यूमंस हायर कर रहा है. तो हमको भी तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो हमें कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा होकर हमारे मेमोरी में जाए. तो हमने इसी चीज़ पे काम किया. बहुत सारे ट्रिक्स, मेडिटेरेनियन सी के आसपास याद करने के ट्रिक्स जो आपने बताया, से बहुत सारे ट्रिक्स हम बताते हैं क्लासेस में एंड ऑल दैट. वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे चीज़ें स्मूथ हो, जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए. और यूपीएससी, मतलब मैं इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ कि ये धीरे धीरे करके बोरिंग होने लगती है, क्योंकि फैक्ट जितने ज़्यादा आपके पास जाएंगे आपको परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी. एंड जब आप इसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, जैसे आपने बनाया कि कुछ ऐसे फन लविंग चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसा ट्रिक्स डाल दो, तो वो चीज़ें हमने करने स्टार्ट करी, जिससे बहुत सारे बच्चे जो अभी इस टाइम बेनिफिट उठा रहे हैं. थैंक यू सो मच आस्था. बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हमने पूछे आपसे, हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करें और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे. आप भी जितने भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो. हम मैम से कोशिश करेंगे कि वापस से पूछें सारे क्वेश्चंस. एंड थैंक यू सो मच आस्था, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से आंसर करने के लिए. एंड ये बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ओके आस्था, तो आपने काफ़ी रियलिस्टिकली आपने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए हैं और सच में बहुत मोटिवेट हो जाएंगे हमारे जो कैंडिडेट अगर ये वीडियो देखेंगे. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपने रिप्लाई दिए, मतलब मैं ही इतनी यहाँ बैठ के मोटिवेट हो चुकी हूँ तो वो तो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा हो गए होंगे. सो आस्था, नाउ वी हैव अनदर सीनियर फैकल्टी विद अस, उपरांत सर. नाउ ही विल बी आस्किंग few more questions with you. Sure. Hello Astha, congratulations Thank on you so much. AIS 61. My question is related to your optional subject. As you have chosen your graduation field as economics,
you have decided years back that you will be taking economics as a subject in your graduation and going for optional economics as well. How this preemptive methods helped you in your optional subject, and how what was your score in optional? Okay, so talking about deciding the optional, obviously because मैं commerce background से थी, 12th में मैंने उससे pass out किया, फिर it made sense for me to go in the same direction with my degree as well, and I obviously had to think about, you know, say fallback career option. So when I do a degree like say BCom or economics honors, there are like a lot of chances even in the corporate sector, right? So as a very realistic choice, I went for economics because again, it was more of a specialized field than BCom, and I was not very interested in going for that because again, for UPSC also, I feel like the economic subject was a better choice than say accountancy or business or something like that. So keeping those things in mind, मतलब जितना मुझे उस टाइम पे आइडिया था, मैंने सोचा economics करते हैं and it's a cool subject to study also. तो फिर वो मैंने लिया ज़रूर, but the thing was the 3 years of college, they passed by in a blink, and because I was a COVID batch also, about 1.5 years of my, you know, graduation was just gone, sitting at home where you're not really studying that much, you're just passing exams. तो ऐसा नहीं था कि मैं इकोनॉमिक्स अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो ऑब्वियसली आई हैड माई डाउट्स before jumping into preparation. At one point I did consider switching कि economics की जगह maybe I should go for some subject like sociology or anthropology which has a better score card, right? So I did think all those things, but thankfully enough I met a great teacher for my optional, and he really ignited that fire in me कि economics is doable, that it is a subject that you can, you know, go for an AS and still score really well. And also I wanted to break the monotony that comes with say studying GS subjects on a stretch, so economics being a little technical on that side. So I thought कि ये बढ़िया option रहेगा. I already had a graduation, so some level of foundation was also there. तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई scratch से एक नया subject समझना, पढ़ना है और उसको like करना शुरू करना है, उसमें interest जगाना है. So all these decisions together, I think they helped me and they inspired me to go for that. But talking about my score was decent. It was a 264. I scored 131 in paper 1 and 133 in paper 2. It was actually a nice score. I think so. Obviously, you always expect कि 300 के ऊपर आ जाए, but again, that's a very difficult score mark to achieve. But yeah, I'm happy with it. All's well that ends well. So I'm happy with that. Yeah. My next question will be like a follow-up question, because as you said, you have already decided you'll be preparing for economics. But if we talk about other GS subjects, other GS paper, GS 1, 2, 3 and 4, what was your strategy for these exams, and how newspaper reading helped you in answer writing? So talking about GS 1, 2, 3, 4, I did not have a lot of time before say prelims to prepare for my main subjects. I tried to do some, for example, थोड़ा बहुत मैंने GS 2 के notes बनाए, polity के mains oriented notes, GS 3 के मैंने notes बनाए, GS 4 I tried to study a little bit, but then I had to study it all, like, you know, all over again once mains came. तो मतलब बहुत ज़्यादा cover नहीं हुआ था मेरा syllabus mains तक. My strategy at the end, because I didn't have a lot of time during mains, was कि जितना ऑलरेडी मेरे पास कंसोलिडेटेड रिसोर्स है उसको पढूं, उसको बार बार रिवाइज करूं, एंड आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम wherever I can. So whatever online free resources are available, मेरे दोस्तों के कुछ नोट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी. तो एज सच कोई एक स्ट्रेट जैकेट स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी फॉर दैट, बट माई ओनली एम वॉज कि सिलेबस फिनिश करना है, इन टाइम करना है और रिवाइज करना है, राइट. When it came to newspaper reading and answer writing, मैंने newspaper reading बहुत ज़्यादा नहीं करी personally. I started reading it initially when I started my preparation. I tried to make notes out of it also. वो सारी चीज़ें मैंने try करी एक महीने के लिए. Everybody do that. एक महीने के लिए वो हो पाया, but then after that I felt like my static was, you know, suffering because of it. इतना time नहीं होता कि आप 2-2 घंटे लगाओ हर दिन, you know, newspaper पे. And you still don't cover everything क्योंकि आप last में magazine तो पढ़ने ही वाले हो.
No matter how much newspaper you read, you will not be confident enough to skip a magazine or a yearly compilation, right? तो फिर मैंने सोचा कि let's skip the newspaper, and I focused on से जो monthly magazines आती थी उनको मैं month में एक बार बैठ के पढ़ लेती थी, and secondly closer to the mains जो yearly compilation आता है I would just give that a read, and then I would revise obviously 2-3 times. तो ये मेरा current affairs का सोच था, and current affairs helping in आंसर राइटिंग वॉज बेसिकली मैं क्या करती थी, कोई भी मैगजीन जैसे कि जो मेंस स्पेसिफिक मेंस 365 फॉर एग्जांपल जो मैगजीन है उसको मैं पढ़ती थी, उससे जो डेटा पॉइंट्स कोई स्कीम्स हैं कोई बहुत ही एक्यूरेट ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आप अपने आंसर्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उनका एक डेटाबेस बना लेती थी. लाइक आई वुड मेक अ चीट शीट आउट ऑफ इट. तो मैंने से सोशल इशूज़ की अगर बनाई तो उससे रिलेटेड जो भी वुमेन से रिलेटेड और एल्डरली पीपल से रिलेटेड एनी सोशल इशू से रिलेटेड जो भी डेटा पॉइंट्स हैं कोई भी स्कीम्स हैं मैं उन्हें एकदम छोटा सा वो पॉइंट बना लेती थी, वो नोट बना लेती थी, एंड आई वुड कीप रिवाइजिंग दैट शीट. सो एट द एंड क्या होता था कि आई हैड ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू विमेन. तो जब भी कोई विमेन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आई वुड बी एबल टू से थ्रो सम डेटा इन, थ्रो सम स्कीम्स इन, and that was mostly my strategy. It was more like cherry picking and collecting all these in a bucket and using the bucket. Smart work, I would say. Smart work करना, क्योंकि hard work तो like there's no limit to it, but you need to be smarter about it. क्योंकि एक इतना overwhelming amount of syllabus है, you can't read everything. You just have like the best things. एकदम minimum input देके maximum output निकालना आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से. So that is what I did. आई थिंक जितनी भी आपने बातें बोली ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, जितने भी आपके आंसर्स थे, जो डायरेक्शन जो अगर मैं इसका जूस एक चंक अगर इसको चॉक आउट करूँ कि आपने आप रिजल्ट क्या रहा, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन, ये आपकी स्ट्रेटेजी रही है. और क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई क्लियर कर रहा है, आई थिंक यही एक तरीका होता है. यू नीड टू फॉलो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन्स. अगर आप एक पंचवर्षीय योजना की तरह लग जाएंगे तो आप ना तो कोर्स पूरा कर पाएंगे, एग्जाम देने की तो बात ही अलग है. आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं थी, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया. आपका मेंस का सिलेबस क्लियर नहीं था लेकिन आपने मेंस क्लियर किया. आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान आप सर्विंग थे, आपने इंटरव्यूज में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए. इसका मतलब यही बनता है कि जो भी अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज थे और जितनी भी प्रिपरेशन थी आपको उसने बहुत अच्छे से आपने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. And that's, I think, is required in UPSC, how you present yourself. Right. Okay. एक मेरा क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है. जैसे आपने बोला कि मैंने इकोनॉमिक्स इसलिए चूज किया बिकॉज प्लान बी. इट मीन्स आप केवल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, आप अपने प्लान बी के लिए भी प्रिपेयर थे. अगर कॉर्पोरेट में जाना पड़ा तो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू इन योर करियर. तो ये सब इतनी सारे आपको जो टेक्निकल इनपुट्स जो है, ये इंटेलिजेंस जो आपको मिल रही थी, इसका सोर्स मैं जानना चाहूँगा. आपकी फैमिली में कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको इस लेवल की इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए था और आपको ऐसा प्रिपेयर? There's not exactly one person. I would definitely say कि मेरे को जैसे मेरे मामा, दोनों मामा जो है, मेरे बड़े मामा छोटे मामा, both of them are one of my guiding lights, I would say, when it comes to any of these career related decisions. So उनके तरफ से कुछ पुश आता है, उनकी तरफ से कुछ गाइडेंस दी जाती है, तो it's like I consider it like as a gospel. तो मैं उस पर बहुत फोकस ज़रूर करती हूँ. But when it comes to say picking subject and stuff like that, I would discuss it with them, but mostly I take my own discretion in these things. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि no matter how iconic that person is, how much you consider that person an idol, there are certain things in life that you need to take a decision on your own account. You can't rely on anyone's feedback कि उन्होंने बोल दिया तो मैंने ये कर लिया. My career, my education being one of those, right? सो इसलिए इन चीज़ों में मैं सबसे इनपुट लेती थी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड डू व्हाट फेल्ट राइट. तो मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन, मेरी फैमिली में ऐसा रहा है, बिकॉज वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, सो एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉर अस टू से increase our standard of living, to get that kind of life which we haven't gotten so far. तो एजुकेशन पे हमेशा ही ज़्यादा जोर रहा है और उस वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा उस पर सोचती थी. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, UPSC is a great dream, it is definitely a job, best job in the country, I would say, but you have to be realistic कि percentage of people passing is definitely low, and I for one am not someone who would spend a lot of my years in this, right? मैं अपने prime years में नहीं गवाना चाहूँगी entirely in it. So I wanted to be prepared for that possibility कि say there are 2-3 attempts which don't work out. You need
an exit. And if I don't have that kind of exit, that I don't have a degree which can give an employable career, so then it's no point. Then I don't want to be that kind of a dead weight to my family also. तो ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के, I know at a very young age I've taken all these decisions, but yeah, it just came very naturally to me. बहुत ही बढ़िया सॉर्टेड आउट आपकी स्ट्रेटेजी थी. एक मेरा क्वेश्चन, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली में ऑक्यूपेशन वाइज देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा स्मेल यहाँ से आ रही है कि आपकी फैमिली में कुछ टीचर्स भी हैं. No, not teachers. Mostly सब हम प्राइवेट सर्विस में ही हैं. And my छोटे मामा, he's in the army also. So the only service, government service is that. Now I got my answer. कि ये इनपुट जो इंटेलिजेंस है कहाँ से आ रही है, ये आपके सर्विंग मामा जी ने आपको प्रिपेयर किया है. क्योंकि My interview preparation has just been talking to him for 3 months straight. मतलब 3 महीने बैठ के हर evening we would just sit down and we would just think about, okay, what can be a possible answer to this? Okay, how do we discuss this? वो मेरे devil's advocate थे throughout my preparation. So definitely a lot of credit to him. Thanks to him, definitely. I think आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन का 100% जो है श्रेय उनको जाता है. बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूँ, इफ आई कंपेयर, स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, इफ यू कंपेयर यूपीएससी इंटरव्यू विद एसएसबी इंटरव्यू, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सीधी बात बता दूँ मैं आपको. I already myself have given 9 SSB interviews. Unfortunately, I have not cleared any. But I have seen UPSC candidates, selected UPSC candidate getting screened out in SSBs and all. So you have got your information, you have got your training from the best in the business. And that's why you have scored 200 marks in your interview. Thank you. One last question from my side. Students sometimes face this FOMO, fear of missing out, that I should join coaching or not, or is it necessary, or I can prepare at home. Have you ever gone through this phase? Of course. I think starting में सबसे बड़ा challenge तो यही था कि everyone is doing coaching, how am I not doing it, और मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं clear कैसे करूँगी. That was the primary. There were a lot of reasons because of which I didn't join a coaching. One being time constraint. मुझे पहला attempt देना था 1 साल में. मुझे नहीं लगता था complete हो पाएगा syllabus in a coaching. Secondly, again, financial aspects. I personally didn't want to burden my parents with that kind of pressure when I thought that I had the capability to do this on my own. So, and thirdly, मुझे दिल्ली में नहीं रहना था because I wanted to stay close to home. I didn't want to, worry about a lot of things like खाना बनाना, laundry करना, अपनी mental sanity को भी ठीक रखना. At the same time, 12 घंटे पढ़ना. I don't think I could personally do all of that on my own. So I think ये सब मिला जुला के I thought that I will not stay in Delhi and I will not do coaching for GS, and because of which I moved back home. But फिर भी ऐसा लगता था कि what if I don't know what the competition is, कहाँ वहाँ पे लोग ORN में मुखर्जी नगर में इतना prepare कर रहे हैं, there constantly there's this competition that I can't see, I don't know what I'm up against. पर वो बस starting के 4-5 महीने होता है. धीरे धीरे when you start studying, that bubble bursts. Because you find that वो जो constant competition, constant comparison जो वहाँ पे हो रहा है, that is not helping your studies. It only makes it worse. Because मुझे जहाँ तक कोई ऐसा threat नहीं हर टाइम पे फील होता था. I could do things on my own pace. I was confident in my preparation for once, which I don't think I would have been अगर मुझे लग रहा होता कि अरे उसका तो इतना सिलेबस हो गया, मेरा तो इतना नहीं हुआ, उसके टेस्ट में उतने नंबर आ गए, मेरे नहीं आए. तो that would have a negative impact on my psyche. I personally believe. So over time I realized that this FOMO is not worth it. There's everything available online and a lot of guidance, a lot of mentorship for free and paid that you can get online remotely. So you don't have to waste so much time and resources. Personally is what is my but again it depends on person to person. आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ करनी है, अपने आप को एनालाइज करना है, खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन एट कोर. आपको लगता है कि आपको डंडा चाहिए पढ़ने के लिए, दैट यू नीड समवन कॉन्स्टेंटली टू गाइड यू, टू टेल यू ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, टू चेक योर वर्क, देन गो फॉर कोचिंग्स, then go for a mentorship, go for guidance. It depends on person to person. I personally felt I didn't need it, so I didn't go for it. भेड़ चाल में आपको नहीं करना है कुछ. That's my only input.
आई थिंक इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो हम अपनी क्लास वगैरह में यूज करते हैं, क्राउड ब्रिंग्स कंफ्यूजन एंड साइलेंस ब्रिंग्स कंक्लूजन. Yes, That's why we sit quietly in libraries and our rooms and study for long hours. Is it necessary to study 18 hours to clear this No, examination? not possible. Like we talked earlier also with sir that ये जो 15-16 घंटे वाली पढ़ाई है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने कर पाओगे, which you should do, say closer to mains. But you can't consistently possibly study for that long for a year. Even up to 11-12 hours, I can say that you can study consistently if you're a full-time aspirant. But 18 hours is just unreal. When will you eat? When will you sleep? You can't do that for a year. So that is just an over-exaggeration in my opinion. Most of the selected candidates do these things to gain sasti lokpriyata. That's why. They used to brag about their studying hours. Some used to brag about कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा हो गया. That is also not good. One last question, because talking to you is very fun, I think, because आपके जो आंसर्स है बहुत प्रैक्टिकल हैं. इसमें कुछ भी ऐसा इंक्लूडेड नहीं है that we have given you some script or something like this. हम तो अपने जो क्वेश्चंस लेकर आए थे वो भी हमने चेंज कर दिया आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग. इसलिए वन लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आप स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना. ये जब पॉडकास्ट एयर होगा तो कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि शी इज़ लकी, पहली बार में क्लियर होगा. लेकिन मैं सभी को बता दूं ऐसा नहीं. इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, इनकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत थी और चीज़ें स्मूथ गई तो ये पॉसिबल हुआ. ये पॉसिबल अदरवाइज नहीं हो पाता. इनको भी ये ट्रस्ट नहीं रहा होगा फुली कि होगा या नहीं होगा. इसके लिए नेक्स्ट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चल रही थी और शायद प्रीलिम्स दिया भी है. ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं हुआ होगा. रिजल्ट पहले आ गया तो नहीं दिया होगा, ठीक है. अगर रिजल्ट नहीं आता तो प्रीलिम्स के लिए जा रही थी, ठीक है. यही होती है एक अच्छी प्लानिंग, बिकॉज आप प्रिपेयर्ड हैं कि नेक्स्ट एग्जाम आ चुका है, आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो नेक्स्ट आप चांस को मिस कर रहे हैं. हो सकता है मैम को IPS मिला होता जो कि वो नहीं चाह रही थी. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को. सभी आपके लिए बच्चे नहीं होंगे बिकॉज आप 22, मोस्ट ऑफ सर्वाइव टिल 30+ इस फील्ड में. तो आप स्टूडेंट ले लेते हैं, आपके बड़े और छोटो सभी को मिला लेते हैं. आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी स्ट्रेटेजी के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे आपको बना के रखना है. दूसरा, एक IAS ऑफिसर बनने के बाद आपको कैसा महसूस होगा? Okay, few things. So when it comes to say clearing in the first attempt, stuff like that, मेरे हिसाब से mindset is very very essential. A lot of people step into this preparation thinking कि यार 3 attempt से पहले तो कहाँ ही होता है exam. So first, second attempt are like trial attempts. There is no such thing as trial attempts. There should not be a thing as trial attempts. Yeah. When I jumped in, the only difference I think was that from the very first day I was like, I have to clear in the first attempt. I was not thinking youngest or anything, but obviously like why do you want to wait through this? It is not a great time. I would say like your confidence, your esteem, your vigor, it keeps losing over the years. So try to get out of it the earliest. Try to study like this is the last attempt that you're giving. तो सिलेबस को लाइटली ना लें, क्लासेस को लाइटली ना लें. ट्राई टू फिनिश थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी पेस अगर बेटर है तो यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन एल्स. जस्ट डू थिंग्स एट योर ओन पेस. ब्रिंग योर ओन माइंड इनटू योर प्रिपरेशन. आपको लाइक आई सेड भेड़ चाल में चलना कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है. आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड फॉलो दैट स्ट्रैटेजी. बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजंस. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजंस देन एट एवरी स्टेप यू विल बी चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, यू विल बी कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड यू विल बी कॉन्स्टेंटली डाउटिंग योर एफर्ट्स. तो अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं और एक स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, देन all of this is a smooth sailing. When it comes to balancing your mental sanity and mental health at this point, I think it's of utmost importance. It's a long preparation. It will have a toll on you. For someone, for example, like me, who's constantly been like a topper throughout her school life, college life, the amount of failure, the possibility of failure is so high in this exam कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा एक fear था कि what if I fail, I can't fail. Like you will obviously have those days, right? So you need to be around people who give you the confidence that if anyone can do it, it's you.
right? You need to surround yourself with people who believe in you. Secondly, you also need to pursue hobbies, pursue things that make you happy. So for example, I like singing. I would just give myself a private concert in front of the mirror now and then and just be happy, right? I would watch Netflix and I would binge series once in a while just to make myself happy and sane. So do things like that. Don't take this too seriously because your brain matters and your health matters, right? And IAS बनके कैसा लग रहा है? It's definitely a feeling that has still not sunk in. I think because I've been super busy for the past 3 months, something or the other keeps happening. I've still not sat down and seen in perspective कि क्या कर दिया है, ऐसा कुछ हो गया है. Definitely the respect, the admiration that comes with it is super amazing. I see people, they come and take selfies with me. It's like, oh, wow, have I done something like that? But I think overall it's super amazing to be out of the cycle, and I'm just very, very excited of what's coming next. So yeah, thank you. बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके मेंस के भी आंसर रहे होंगे, जैसे आपके पॉडकास्ट के आंसर हैं, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट को गाइड करना चाहें कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो गेम चेंजर हो सकता है, इफ़ आई कॉल आउट नेम्स, 3 सब्जेक्ट अगर मैं आपको दूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, 3 में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है अगर किसी स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है या फिर वो उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है तो गेम चेंजर हो सकता है उसके लिए? I think science and technology would be the answer for me, because personally मैंने science and technology अच्छे से पढ़ा despite not being from science as a background. I think what most people do is just underestimate this and give it less importance than it deserves. Over the years, obviously technology is enhancing and the developments are enhancing, so इस पे काफ़ी जोर है. There are new things coming up and about every day, right? तो अगर आप बेसिक्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यू जस्ट नॉट गो फॉर बस कंपाइलेशन पढ़ ली, PD 365 पढ़ ली एंड माई साइंस एंड टेक इज सॉर्टेड. इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी एंड यू genuinely focus on say the core concept, there's a lot of questions that you can just tackle in science and technology with your basic understanding of concepts. तो अगर आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे ना, then you can get most of the questions right, is what my experience has been. बिल्कुल सही आर्टिकुलेट किया आपने, बहुत सही. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. जितने भी आंसर्स दिए आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, और आई थिंक स्टूडेंट्स को इससे सिंप्लीफाइड वर्जन किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नहीं देखने को मिलेगा, जितने इतने चार्मिंग तरीके से और इतने सिंप्लीफाइड तरीके से मैम ने बातों को रखा है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस का आंसर दिया. थैंक यू सो मच मैम इतने सिंप्लीफाइड आंसर देने के लिए. थैंक यू. तो जैसा कि सर ने बोला आस्था कि आपने बहुत अच्छे से अपने आंसर को रखा है, और जितने भी कैंडिडेट्स अभी ये वीडियो देखेंगे हमारी, उसके बाद उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और शायद वो भी अपने इंटरव्यू में ऐसे ही आंसर देने वाले हैं बेझिझक और कॉन्फिडेंटली. कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और आई होप कि ये पॉडकास्ट वैसे भी सबको अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हम बता सकते हैं कि आज हमें आस्था से मिलके कैसा लगा, और जितने भी आंसर उन्होंने दिए हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल कह सकते हो आप लोगों के लिए भी. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जॉब ग्रेड हर बार कुछ नया लेके आता है और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है. और अगर आप कुछ आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ हैं तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को आपके सामने लेके आएँ. थैंक यू सो मच.